صدر اعظم زرداری عراق کے 4 روزہ سرکاری دورے پر بغداد میں موجود۔ بغداد آمد پر عراق کے وزیر ثقافت اور سیاحت، پاکستانی سفیر اور دیگر سینئر حکام نے استقبال کیا۔ صدر مملکت کی اعلیٰ عراقی قیادت سے ملاقاتوں میں مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر بات چیت متوقع۔ یہ دورہ پاکستان اور عراق کے برادرانہ تعلقات کو مزید فروغ دے گا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری کا لاہور ایئرپورٹ کا دورہ۔ بیرون ممالک جانے والے مسافروں سے ملے اور امیگریشن کے عمل کے بارے میں پوچھا۔ پاکستان کی عزت اور آپ کی سہولت سب سے زیادہ عزیز ہے۔ کسی بھی مسافر کو بلا جواز سفر سے نہیں روکا جائے گا۔ پیشہ ور بھکاری یا نامکمل دستاویزات پر کسی کو سفر کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ پاکستان کی بدنامی کا باعث بننے والوں کی جگہ جیل ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی۔ شہید بے نظیر بھٹو کا ویژن پسماندہ اور دیہی علاقوں کی ترقی کے مرکزی دھارے میں لانا تھا۔ سڑکیں نہ صرف سفر کو آسان بناتی ہیں بلکہ تعلیم، صحت اور مقامی معاشی سرگرمیوں کو بھی فروغ دیتی ہیں۔ خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری کی سڑکوں کے منصوبے کے افتتاح کے موقع پر گفتگو۔ منصوبوں کا مقصد علاقائی روابط کو بہتر کرنا اور مقامی آبادی کی آمد و رفت کو سہل بنانا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سے موریشس کے ہائی کمشنر کی ملاقات۔ تعلیم، سیاحت، زراعت اور عوامی تبادلوں کے شعبوں کو مزید بڑھانے پر اتفاق۔ ملاقات میں حلال فوڈز، ٹیکنالوجی اور ہیومن ریسورس کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر بھی زور۔ مریم نواز شریف کا موریشس کے لیے چاول، ٹیکسٹائل اور فارماسیوٹیکل مصنوعات کی برآمدات مزید بڑھانے کے عزم کا اظہار۔ خیبر پختونخوا کے عوام صوبائی حکومت کی کارکردگی پر شدید مایوسی کا شکار۔ سرکاری اسپتالوں میں بنیادی سہولیات کا فقدان۔ صوبائی حکومت سیاسی جلسوں، دھرنوں اور احتجاجی سرگرمیوں میں مصروف دکھائی دیتی ہے۔ حکومت کے لیے سیاسی سرگرمیاں زیادہ اہم ہیں یا شہریوں کی بنیادی ضروریات؟ عوام وفاق سے ملنے والے فنڈز کے مؤثر استعمال نہ ہونے پر بھی سوالات اٹھا رہے ہیں۔ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ صورتحال نااہلی ہے یا کرپشن؟ دہشت گرد تنظیموں کی جانب سے نوجوان ذہنوں کو ہتھیار بنا کر شرپسندی کی مکروہ سازشیں بے نقاب۔ دہشت گردوں کے اہل خانہ کا نوجوانوں کے استحصال کے لیے پہاڑی علاقوں میں آماج گاہوں کا انکشاف۔ نوجوان تعلیم کی آڑ میں دہشت گرد گروہوں کے ہاتھوں استعمال ہوتے رہے۔ ریاستی بیانیہ واضح ہے کہ دہشت گردوں کا انجام ہلاکت اور ان کے خانوادوں کے لیے باعث شرمندگی اور پچھتاوا ہے۔ طالبان رجیم کے زیر سایہ دہشت گردوں کی سرحدی دراندازی عالمی سلامتی کے لیے سنگین خطرہ۔ مختلف ممالک افغانستان سے دہشت گردی کے پھیلاؤ کے خلاف انتہائی اقدام لینے پر مجبور۔ متعدد افغان شہری غیر قانونی طور پر سرحد عبور کرتے ہوئے ایرانی سرحد پر ہلاک ہوئے۔ ایران افغانستان سرحد پر 40 ہلاکتوں اور متعدد مہاجرین کے لاپتہ ہونے کی اطلاعات موصول۔ جریدے ایران انٹرنیشنل نے افغان باشندوں کی سرحدی دراندازی کا پردہ فاش کر دیا۔ پاکستان متعدد بار دہشت گرد نیٹ ورکس کی دراندازی میں افغان سرزمین استعمال کے شواہد منظر عام پر لا چکا ہے۔ مودی کے ہندوتوا اور سامراجی عزائم کے خلاف خطے میں نفرت کی لہر بے قابو۔ بنگلہ دیش ایک بار پھر بھارت مخالف نعروں سے گونج اٹھا۔ عثمان ہادی کی شہادت کے بعد بھارت سے دیگر بنگال رہنماؤں کو قتل کی دھمکیاں۔ مودی کی علاقائی غنڈہ گردی اب قبول نہیں ہوگی۔ وہ دن دور نہیں جب بھارت سے لوگ ہندوتوا ذہنیت کے خلاف آزادی کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ بنگلہ دیش سے بھارت کو پیغام۔ عالمی میڈیا کا بھارتی پائلٹس کی ذہنی صحت سے متعلق مجرمانہ غفلت کا برملا اعتراف۔ دلی ایئرپورٹ پر بھارتی پائلٹ کے وحشیانہ تشدد نے فضائی عملے کی ذہنی کیفیت کا پردہ چاک کر دیا۔ ایئر انڈیا ایکسپریس کے پائلٹ نے فک بورڈنگ قطار ٹوٹنے پر مسافر کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ نااہل بھارتی فضائیہ کے بعد سول ایویشن کے ذہنی بیمار عملے نے ایک دفعہ پھر بھارت کو عالمی رسوائی کی دلدل میں دھکیل دیا۔ اسلام آباد اور راولپنڈی سمیت ملک کے مختلف علاقوں میں گزشتہ رات سے وقفے سے بارش۔ طویل خشک موسم کے بعد بارش سے سردی کی شدت میں اضافہ۔
खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में भी मौसम ने करवट ले ली। वादी कागान, सरन, बहुडन, कालाम, मालम जब्बा और गबीन जब्बा में बर्फबारी जारी। कोयटा और उसके गिरदोनवाह में सुबह के औकात में हल्की बारिश हुई, जिससे मौसम खुशगवार मगर सर्द हो गया। बलोचिस्तान के इलाके चमन, पंजगूर, कल्लात, लौरलई, खारान और कला सैफुल्ला में भी बारिश। आइंदा चंद रोज में सर्दी की शिद्दत मजीद बढ़ने का खदशा। मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह आज़ाद कश्मीर में भी मौसम सरमा की पहली बारिश। तवील खुश्क मौसम के बाद बेशतर इलाकों में बारिश का सिलसिला गुज़िश्ता रात शुरू हुआ, जो वक्फे से जारी रहा। नीलम और वादी जहरम के बालाई इलाकों में बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। गजा पर काबिज इजरायली फोर्सेस के हमले जारी। स्कूल पर हमले में 6 जबकि शिमाली गजा में फजाई हमले में 2 अफराद शहीद। गजा में मलबे से 94 फलस्तीनियों की लाशें बरामद। मियामी में होने वाले इजलास में चारों ममालिक के आला हुक्काम की इसराइल और हमास के दरमियान 10 अक्टूबर से नाफिज जंगबंदी के पहले मरहले का जायजा। अमरीका, मिस्र, कतर और तुर्की का जंगबंदी के फ़रीक़ैन पर अपने वादों की पासदारी और तहम्मुल का मुजाहरा करने पर जोर। जनूबी अफ्रीका के शहर जोहान्सबर्ग के बेगिसडाल टाउनशिप में फायरिंग, 10 अफराद हलाक, 10 जख्मी। नामालूम मुसल्लह अफराद अंधाधुंध फायरिंग करने के बाद गाड़ी में फरार हो गए। पुलिस ने मुल्जिमान की तलाश के लिए बड़े पैमाने पर कार्रवाई शुरू कर दी। वाक़े की वजूहात ताहाल मालूम नहीं हो सकी। Flipped away. It was on the pads and put away. This ball might have the legs to take it over the rope. Punched away. Ayush Matre has something to chase and it beats दुबई में him. अंडर 19 एशिया कप फाइनल, पाकिस्तान की भारत के खिलाफ बैटिंग जारी। समीर मिन्हास की निस्फ सेंचुरी। मैच पीटीवी स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। And sent it high in the एडिलेड टेस्ट, ऑस्ट्रेलिया की इंग्लैंड को 82 रन से शिकस्त। 435 रन के हदफ के ताक़ुब में इंग्लिश टीम 352 रन बनाकर आउट हो गई। 5 मैचेस की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को 3-0 की फैसला कुन बढ़तरी हासिल। चौथा टेस्ट 26 दिसंबर से मेलबर्न में खेला जाएगा। एशेज सीरीज पीटीवी स्पोर्ट्स एचडी पर बराह रास्त। Edged and it goes down. ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश क्रिकेट लीग 8वें मैच में मेलबर्न रेनिगेट्स और ह्यूबार्ट हरिकेन्स जेलांग में मद्दे मुकाबल होंगे। मैच दिन 1:15 से देखिए पीटीवी स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। 7वें मैच में सिडनी सिक्सर्स ने सिडनी थंडर्स को 47 रन से शिकस्त दी। और सखर में उम्मीद की दौड़ थीम के तहत मैराथन। खवातीन की 10 किलोमीटर रेस कीनिया की मियोनी मुतोका के नाम रही। जापान की युकी लगोची दूसरे, सखर की महानूर अफजल तीसरे नंबर पर रहीं। मर्दों की दौड़ 42.195 किलोमीटर के फासले पर मुहिम। मैराथन में 10 ममालिक के रनर्स ने हिस्सा लिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज खबरनामे के साथ। मैं हूं रिजवान अली अहमद। मैं हूं हुमा मलिक। खेल की खबरें लिए मैं आपका साथ दूंगा समी इकबाल, और मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। खबरनामे का आगाज करेंगे। आपको खबर देंगे सदर आसिफ अली जरदारी इराक के 4 रोज़ा सरकारी दौरे पर बगदाद पहुंच गए हैं। इराकी वजीर सकाफत सियाहत प्रोफेसर डॉक्टर अहमद फ़काक अहमद अल बदरानी, पाकिस्तान के सफ़ीर मोहम्मद ज़ीशान अहमद और दीगर सीनियर हुकाम ने सदर ममलिकत का पुरतपाक इस्तकबाल किया। दौरे के दौरान सदर आला इराकी क़यादत से मुलाकातें करेंगे और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत करेंगे। इस दौरे से पाकिस्तान और इराक के बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ मिलेगा।
صدر آصف علی زرداری نے ایرانی قیادت کے لیے نیک تمناؤں پر مبنی خیر سگالی کا پیغام ارسال کیا ہے۔ ایران میں پاکستان کے سفیر محمد مدثر ٹیپو نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر اپنے پیغام میں کہا کہ اسلام آباد سے بغداد سفر کے دوران جب صدر مملکت کا طیارہ ایرانی فضائی حدود میں داخل ہوا تو صدر نے ایرانی قیادت کے نام نیک تمناؤں کا پیغام بھجوایا۔ صدر مملکت نے ایران کے ساتھ یکجہتی کا اعادہ کرتے ہوئے باہمی احترام اور دو قدیم ہمسائے ممالک کے درمیان تعلقات کو مزید مضبوط بنانے پر زور دیا۔ صدر آصف علی زرداری کا پیغام ایسے وقت میں آیا ہے جب ایرانی قوم آج شب یلدا منا رہی ہے۔ یہ قدیم تہذیبی روایت ہے جو لوگوں اور خاندانوں کے درمیان امید، خوشی اور باہمی ہمدردی کو فروغ دیتی ہے۔ شب یلدا کی یہی روح ہمارے دو طرفہ تعلقات کے ساتھ ساتھ سماجی اور ثقافتی قربتوں کی بھی عکاس ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری نے لاہور ایئرپورٹ کا دورہ کر کے بیرون ممالک جانے والے مسافروں کی امیگریشن پروسیس کا جائزہ لیا۔ وفاقی وزیر محسن نقوی نے بیرون ممالک جانے والے مسافروں سے بھی ملاقات کی اور امیگریشن کے عمل سے متعلق پوچھا۔ اس موقع پر کوئی جانے والے مسافر نے چیکنگ میں تاخیر کے باعث بورڈنگ بند ہونے کی شکایت کی، جس پر وزیر داخلہ نے متعلقہ حکام کو مسافر کی بورڈنگ کرانے کے احکامات دیے۔ وفاقی وزیر داخلہ نے کہا کہ پاکستان کی عزت اور مسافروں کی سہولت سب سے زیادہ عزیز ہے، کسی بھی مسافر کو بلا جواز سفر سے نہیں روکا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ پیشہ ور بھکاری یا نامکمل دستاویزات پر کسی کو سفر کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ پاکستان کی بدنامی کا باعث بننے والوں کی جگہ جیل ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سے جمہوریہ ماریشس کے ہائی کمشنر نے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں بزنس ٹو بزنس روابط، تجارتی وفود اور نمائشوں کے انعقاد کی اہمیت پر زور دیا گیا۔ باہمی تعلقات، تعلیم، سیاحت، زراعت اور عوامی تبادلوں کے شعبوں کو مزید بڑھانے پر بھی اتفاق ہوا۔ دونوں رہنماؤں نے حلال فوڈز، ٹیکنالوجی اور ہیومن ریسورس کے شعبوں میں تعاون بڑھانے کا کہا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے بلیو اکانومی کے شعبے میں سرمایہ کاری پر ہر ممکن تعاون کے عزم کا اظہار کیا۔ مریم نواز شریف نے کہا کہ ماریشس کے لیے چاول، ٹیکسٹائل اور فارماسیوٹیکل مصنوعات کی برآمدات مزید بڑھانے کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور ماریشس کے درمیان ثقافتی تعلقات اور باہمی احترام پر مبنی دیرینہ دوستانہ تعلقات ہیں۔ انسانی سرمایہ کی ترقی، بالخصوص اعلیٰ تعلیم اور پیشہ ورانہ مہارتوں میں تعلیم کے اور تعاون کے مواقع موجود ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ 1 لاکھ سے زائد نوجوانوں کو اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام کے ذریعے ہنرمند افرادی قوت میں بدل رہے ہیں۔ پنجاب زرعی پروسیسنگ، ٹیکسٹائل، فارماسیوٹیکل اور ویلیو ایڈڈ فوڈ پروڈکٹس میں شاندار مواقع سے بھرپور ہے۔ کلائمیٹ ریزیلینٹ ویژن ایکشن پلان، گرین سرمایہ کاری، ماحولیاتی تحفظ کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ مریم نواز شریف نے کہا کہ اندرون لاہور شاہی قلعہ، بادشاہی مسجد، شالیمار گارڈنز، نور محل اور دیگر مذہبی سیاحتی مقامات بھی توجہ کا مرکز بن چکے ہیں۔ پنجاب نے تباہ کن سیلاب کے چیلنج کا پامردی سے سامنا کیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے منسوکر مباحث کو مبارکباد اور نوجوانوں کی ترقی اور منشیات کے خلاف انتھک کوششوں کو سراہا۔ گنے کی پیداوار اور ویلیو ایڈیشن میں ماریشس کے تکنیکی تعاون کا خیر مقدم کریں گے۔ خیبر پختونخوا کے عوام میں صوبائی حکومت کی کارکردگی پر شدید مایوسی پائی جا رہی ہے۔ عوام کا کہنا ہے کہ سرکاری ہسپتالوں میں بنیادی سہولیات کی شدید کمی ہے، ایمرجنسی وارڈز میں ادویات ناپید ہیں اور ایک ہی بیڈ پر 3 سے 4 مریضوں کو علاج کروانا پڑ رہا ہے۔ شہریوں کے مطابق صوبائی حکومت عوامی مسائل حل کرنے کے بجائے سیاسی جلسوں، دھرنوں اور احتجاجی سرگرمیوں میں مصروف دکھائی دیتی ہے۔ عوام سوال کر رہے ہیں کہ حکومت کے لیے سیاسی سرگرمیاں زیادہ اہم ہیں یا شہریوں کی بنیادی ضروریات۔ عوام کا کہنا ہے کہ گزشتہ 13 برسوں سے صوبے میں ایک ہی جماعت کی حکومت ہے، مگر اسپتالوں، سکولز اور سڑکوں سمیت بنیادی ڈھانچے میں کوئی نمایاں بہتری نظر نہیں آتی۔ وفاق سے ملنے والے فنڈز کے مؤثر استعمال نہ ہونے پر بھی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ عوام یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ صورتحال نااہلی ہے یا کرپشن۔ دہشت گرد تنظیموں کی جانب سے نوجوان ذہنوں کو ہتھیار بنا کر شرپسندی کی مکروہ سازشیں بے نقاب ہو گئی ہیں۔ دہشت گردوں کے اہل خانہ کا نوجوانوں کے استحصال کے لیے پہاڑی علاقوں میں موجود شرپسند عناصر کی آماج گاہوں کا انکشاف کیا گیا ہے۔ متاثرہ خاندانوں کے بیانات ظاہر کرتے ہیں کہ نوجوان تعلیم کی آڑ میں دہشت گرد گروہوں کے ہاتھوں استعمال ہوتے رہے ہیں۔ دہشت گرد غلام جان کے بھائی کا کہنا تھا کہ پڑھائی کے لیے کراچی جانے والا غلام جان اچانک پہاڑی علاقے میں جا پہنچا اور رابطہ ختم ہونے اور ناکام تلاش کے بعد بالآخر غلام جان کی شناخت ہلاک دہشت گرد سے ہوئی۔ دہشت گرد آصف کے والد نے تسلیم کیا کہ ان کا بیٹا تعلیم چھوڑ کر دہشت گرد تنظیموں کا حصہ بن گیا تھا اور بے پناہ فریاد کے باوجود بھی بیٹے نے گھر والوں کی بات نہ مان کر رابطہ ترک کر دیا۔
दहशत गर्द आसिफ के वालिद के मुताबिक बेटे ने वालिद को भी शरपसंदी की राह में रुकावट बनने पर गोली मार देने की धमकी दी। रियासती बयानिया वाज़ेह है कि दहशत गर्दों का अंजाम हलाकत और उनके खानवादों के लिए महज शर्मिंदगी और पछतावे के सिवा कुछ भी नहीं है। अफगान तालिबान रजीम के ज़ेर साया दहशत गर्दों की सरहदी दरअंदाजी आलमी सलामती के लिए संगीन खतरा बनती जा रही है। दुनिया के कई ममालिक अफगान सरजमीन से फैलती बेमहार दहशत गर्दी के खिलाफ इंतहाई इकदाम लेने पर मजबूर हैं। ईरानी जरीदा ईरान इंटरनेशनल ने वाज़ेह हक़ाइक़ बयान करते हुए अफगान बाशिंदों की सरहदी दरअंदाजी का पर्दाफाश कर दिया है। ईरान इंटरनेशनल के मुताबिक मुतादिद अफगान शहरी गैर कानूनी तौर पर सरहद अबूर करते हुए ईरानी सरहद पर हलाक हुए। ईरानी सरहद पर हलाकत के बाद 15 अफगान महाजरीन की लाशें कोहिस्तान और अदरस्कंद अजला मुंतकिल की गई। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान अफगानिस्तान सरहद पर मजमूई 40 हलाकतों और मुतादिद महाजरीन के लापता होने की इत्तलात मौसूल हुई हैं। अफगान बाशिंदे इस्लाम कला के रास्ते से गैर कानूनी तौर पर शहर में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। सीनियर ईरानी सरहदी कमांडर के मुताबिक गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में रवा बरस अक्टूबर तक ईरान में गैर कानूनी दाखिले की अफगान कोशिशों में दुगना इजाफा हुआ है। रवा साल अब तक 16 लाख से ज़्यादा अफगान महाजरीन और पनाहगुज़ीनों के ईरान से बेदखल किया जा चुका है। ईरानी हुकाम के मुताबिक 12 रोज़ा तनाज़े के दौरान मुतअद्दिद अफगान शहरी इसराइल के लिए जासूसी में मुलव्विस पाए गए। आलमी नशरियाती इदारे कैस्पियन न्यूज़ के मुताबिक अफगान सरहद से बढ़ते सिक्योरिटी खतरात के बायस ईरान ने रवा साल 300 किलोमीटर तवील सरहदी बाड़ की तकमील का फैसला भी कर लिया है। पाकिस्तान मुतअद्दिद मरतबा दहशतगर्द नेटवर्क की दरअंदाजी में अफगान सरजमीन के बेदरेग इस्तेमाल की शवाहिद आलमी सतह पर फराहम कर चुका है। जनूबी एशिया में भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की हिंदुत्व पॉलिसियों और साम्राज्य अज़ाइम के खिलाफ नफरत की लहर तेजी से शिद्दत इख्तियार कर रही है। बांग्लादेश एक बार फिर भारत मुखालिफ नारों से गूंज उठा है, जहां अवाम मोदी हुकूमत की पॉलिसियों को खुले आम चैलेंज कर रहे हैं। मोदी की भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के जरिए जारी रियासती दहशतगर्दी हद से तजावुज़ कर गई है। बांग्लादेशी इनकलाबी रहनुमा उस्मान हादी की शहादत के बाद भारत की जानिब से दीगर बंगाल रहनुमाओं को कत्ल की धमकियां दी जा रही हैं। भारतीय फौज के रिटायर्ड मेजर और कर्नल की जानिब से खुलेआम नौजवान रहनुमा हसनात अब्दुल्ला को धमकियां दी गईं। सोशल मीडिया पर बांग्लादेश की तकसीम से मुतालिक बयानात और धमकी आमेज रवैया भारत के तौसी पसंदाना अज़ाइम को ज़ाहिर करता है। अवामी मुजाहिरे खित्ते में भारतीय मुदाखलत, अखंड भारत नजरिए और हिंदुत्व ज़हनियत के खिलाफ बढ़ते हुए गुस्से और मज़ाहमत की अक्कासी कर रहे हैं। भारतीय पायलट्स या ज़हनी मरीज। आलमी मीडिया का भारतीय पायलट्स की ज़हनी सेहत से मुतालिक मुजमाना गफलत का बरमला एतराफ़। भारतीय फ़ज़ाइया की मुसलसल पेशेवराना खस्तगी और इसके पायलट्स की लाचारी के बाद अब भारतीय सिविल एविएशन भी रुसवाई का शिकार है। भारतीय एविएशन पायलट्स के नाक़िस नफ्सियाती स्क्रीनिंग और ज़हनी मसाइल ने पायलट्स को मुसाफिरों के लिए संगीन खतरा बना दिया है। भारतीय एविएशन ने एक मरतबा फिर ज़हनी दबाव के शिकार पायलट्स के हाथों में सैकड़ों जानें थमा दी। दिल्ली एयरपोर्ट पर भारतीय पायलट के वहशियाना तशद्दुद ने फ़ज़ाई अमले की ज़हनी कैफियत का पर्दा चाक कर दिया। NDTV के मुताबिक एयर इंडिया एक्सप्रेस के पायलट ने दिल्ली एयरपोर्ट पर मुसाफिर पर बेईमाना तशद्दुद करके खून आलूदा कर दिया। भारतीय पायलट वरिंदर सेजवाल ने फ़कत बोर्डिंग कतार तोड़ने पर मुसाफिर को तशद्दुद का निशाना बनाया। मुतासरा शख्स ने भारतीय सड़कों के बाद अब एयरपोर्ट पर भी पुरतशद्दुद वाक़यात को शदीद तशवीशनाक करार दिया है। अहमदाबाद हादसे से कबल भी ज़हनी दबाव के शिकार पायलट को फ्लाइट क्लियरेंस देने पर एयर इंडिया को कड़ी तनकीद का सामना है। न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट्स के मुताबिक हादसे के दौरान भी एयर इंडिया के पायलट्स में डिप्रेशन और ज़हनी मसाइल मौजूद थे। हाल ही में दुबई एयर शो में भारतीय तैयारा तेजस की तबाही पहले ही भारतीय फ़ज़ाइया के पायलट्स की तरबियती मेयार ज़मीन पोस्ट कर चुकी है। मार्का हक में भी भारतीय फ़ज़ाइया बदतरीन कारकर्दगी की बदौलत पाक फ़ज़ाइया के हाथों राफेल तैयारे गंवाकर हज़ीमत उठा चुकी है। नाअहल भारतीय फ़ज़ाइया के बाद सिविल एविएशन किए ज़हनी बीमार अमले ने एक दफ़ा फिर भारत को आलमी रुसवाई की दलदल में धकेल दिया है। गजा पर काबिज इसराइली फोर्सेस के हमले जारी हैं। फ़लस्तीनी सिविल डिफेंस के मुताबिक एक स्कूल पर हमले में 6 अफराद शहीद हो गए। इसराइली फौज ने शिमाली गजा में एक फ़ज़ाई हमले में 2 अफराद को शहीद किया। गजा की सिविल डिफेंस ने मलबे से 94 फ़लस्तीनियों की लाशें बरामद होने की तस्दीक की है।
हुकाम के मुताबिक हजारों अफराद अब भी मलबे तले दबे होने का खदशा है। जंगबंदी के बाद अब तक तकरीबन 400 फलस्तीनी जाँ बहक हो चुके हैं। उधर अमरीका, मिस्र, कतर और तुर्की ने गजा जंगबंदी के फ़रीक़ैन पर जोर दिया है कि वो अपने वादों की पासदारी करें और तहम्मुल का मुजाहरा करें। ये बात अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खुसूसी एलची स्टीवर्ट कोफ ने मियामी में होने वाले इजलास के बाद कही। चारों ममालिक के आला हुकाम ने इजराइल और हमास के दरमियान 10 अक्टूबर से नाफिज जंगबंदी के पहले मरहले का जायजा लिया। जनूबी अफ्रीका में जोहानिसबर्ग के करीब नामालूम मुसल्लह कातिलों ने फायरिंग करके कम से कम 12 अफराद को कत्ल और 10 को जख्मी कर दिया। वाकया बेगसडाल टाउनशिप में एक गैर कानूनी बार के करीब पेश आया, जहां गोलियां बेतरतीबी से चलाई गई। पुलिस का कहना है कि अब तक किसी गिरफ्तारी या मकसद की शनाख्त नहीं हो सकी और ये मालूम नहीं कि फायरिंग का मुहर्रक क्या था। मजहबी, नस्ली या किसी खास गिरोह के खिलाफ नहीं कहा जा सकता। तहकीकात अभी जारी हैं। ये दिसंबर में जनूबी अफ्रीका का दूसरा बड़ा फायरिंग वाक़या है, जिससे मुल्क के बढ़ते हुए तशद्दुद और जराइम का संगीन चेहरा सामने आता है। कैडेट कॉलेज वार्षिक में यौम वालिदैन के मौके पर एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें कैडेट्स के वालिदैन के अलावा अस्करी और सिविल हुकाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब के मेहमान खुसूसी कोर कमांडर पेशावर थे, जिन्हें कैडेट्स के चाको चौबंद दस्ते ने शानदार सलामी पेश की। इस मौके पर मेहमान खुसूसी ने तलबा से खिताब करते हुए कहा कि कैडेट्स अपनी तमाम तर तवज्जो आला तालीम के हुसूल और किरदार साजी पर मरकूज रखें। उन्होंने निसाबी और गैर निसाबी सरगर्मियों में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले कैडेट्स में इनामात और ट्रॉफियाँ भी तकसीम की। आला कारकर्दगी पर कैडेट काशा बंगश ने पहली, जबकि कैडेट उज़ैर रहमान ने दूसरी पोजीशन हासिल की। तकरीब के दौरान जिमनास्टिक, घुड़सवारी और दीगर सरगर्मियों के अमली मुजाहरे भी पेश किए गए। कैडेट कॉलेज वार्षिक 2009 में कायम हुआ और आज मुल्क के मुमताज़ तालीमी इदारों में शुमार होता है, जहाँ से फारिग तहसील तलबा मुख्तलिफ शोबों में नुमाया खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। मौसमियाती तब्दीली की वज़ीर ममलकत डॉक्टर शिजरा मनसब कहती हैं कि बानी PTI मकाफात अमल का शिकार हुए हैं। दूसरों को चोर चोर कहने वाला खुद सबसे बड़ा चोर निकला। बहुत जल्द सारा इंतशारी टोला अपने अंजाम को पहुंच जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्की मईशत बेहतरी की जानिब गामज़न है। ज़िला रनकाना साहिब के मुख्तलिफ इलाकों में सुई गैस की फराहमी और दीगर तरक्याती मनसूबों का इफ्तिताह करने के बाद गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर शिजरा मनसब ने कहा कि मुस्लिम लीग नून अवामी खिदमत की सियासत पर यकीन रखती है। इंतखाबात में किए गए अपने तमाम वादे पूरे करेंगे। 2018 में एक साजिश के तहत मुल्क की तरक्की का सफ़र रोका गया। PTI के दौरे हुकूमत में मुल्क की मईशत तबाह हुई। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्क दुरुस्त समत में गामज़न है। इंशाअल्लाह आने वाला वक्त बहुत अच्छा है। फोकल पर्सन टू चीफ मिनिस्टर पंजाब बराए इंसदाद पोलियो अज़मा कारदार ने ज़िला भक्कर का दौरा किया। उन्होंने DC ऑफिस में ज़िले भर में जारी 4 रोज़ा इंसदाद पोलियो राउंड के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग ली। फोकल पर्सन ने माइक्रो प्लान का जायजा लिया और जारी पोलियो राउंड की पेशरफ पर तफसीली आगाही हासिल की। डिप्टी कमिश्नर एहसान अली जमाली ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि ज़िले में जारी पोलियो राउंड के दौरान मजमूई तौर पर 1500 टीमें तश्कील दी गई हैं, जिनमें 1373 मोबाइल टीम्स, 50 ट्रांसिट टीमें और 77 फिक्स टीमें शामिल हैं। CEO सेहत और आबादी डॉक्टर मजहर अब्बास बलोच ने जारी राउंड की 2 रोज़ा कारकर्दगी और यौमिया अहदाफ की तफसीलात से आगाह किया। फोकल पर्सन उस्मा कारदार ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ का शोबा सेहत पर खुसूसी फोकस है। उन्होंने कहा कि पोलियो के खात्मे की ये कौमी मुहिम हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। इस दिन में हर फर्द को कौमी फरीज़ा समझते हुए अपना किरदार अदा करना होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की खुसूसी हिदायत पर आवाम को मेयारी और हिफ्ज़ानी सेहत के उसूलों के ऐन मुताबिक खुराक की फराहमी यकीनी बनाने के लिए सूबे भर में मौसर इक़दाम जारी हैं। इसी सिलसिले में पंजाब फूड अथॉरिटी ने ज़िला अटक में बड़ी कार्रवाई करते हुए सीवरेज के पानी से काश्त की गई आलू की फसल तलफ कर दी। तर्जुमान पंजाब फूड अथॉरिटी के मुताबिक अटक के गाँव शाहदेर मोहल्ला गढ़ी में वाक़ तकरीबन 5 कनाल पर मुहित आलू की फसल सीवरेज के आलूदा पानी से काश्त की जा रही थी। कार्रवाई के दौरान पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम ने ट्रैक्टर के जरिए पूरी फसल को उखाड़ कर तलफ कर दिया। पंजाब फूड अथॉरिटी ने शहरियों से अपील की है कि अगर कहीं सीवरेज के पानी से फसल की काश्त गैर मेयारी खुराक की फ़रोख्त देखें तो फौरी तौर पर हेल्पलाइन 1223 पर शिकायत दर्ज करवाएं, ताकि बर वक्त कार्रवाई अमल में लाई जा सके। गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट जनाह पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज मंडी बहाउद्दीन में पोजीशन होल्डर्स, तलबा तालिबात और तालीमी मैदान में शानदार नताइज का मुजाहरा करने वाले असातिज़ा के एजाज़ में सर्टिफिकेट्स, शील्ड्स और ट्रॉफीज तकसीम करने के लिए खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया। मेहमान खुसूसी एडिशनल डिप्टी कमिश्नर और प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर जावेद ने
पोजीशन होल्डर तलबा और तालिबात और बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले असातिज़ा में ट्रॉफियाँ, शील्ड्स और सर्टिफिकेट्स तकसीम किए। इस मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए प्रिंसिपल प्रोफेसर तारिक जावेद का तालीमी मैदान में शानदार नताइज देने वाले असातिज़ा और पोजीशन होल्डर्स तालिबा और तालिबात को मुबारकबाद देते हुए कहना था कि डिस्ट्रिक्ट चिनाब पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज मंडी बहाउद्दीन ज़िले का एक मिसाली तालीमी इदारा है, जहाँ असातिज़ा की मेहनत और लगन की बदौलत हर साल तलबा और तालिबात तालीमी बोर्ड में पोजीशन हासिल करके मुल्क और कौम का नाम रोशन करते हैं। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर राजा हैदर अब्बास ने कहा कि तलबा और तालिबात के लिए निसाबी सरगर्मियों के साथ साथ सेहतमंदाना गैर निसाबी सरगर्मियों में भी हिस्सा लेना ज़रूरी है। खेलों के इनेकाद से आउटडोर सरगर्मियाँ नौजवानों की ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा के लिए बेहद ज़रूरी हैं। उज़्बेकिस्तान के 1600 साल कदीम तारीखी शहर खिवा के आर्दा खिवा टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स में मुनक़िद होने वाले ख्वारिज़म पुलाव फेस्टिवल ने दुनिया भर की तवज्जो अपनी जानिब मबसूल करा ली है, जहां पहली बार 9 टन रिवायती ख्वारिज़म पुलाव तैयार किया गया है, जिसने एक मुनफरिद तारीखी रिकॉर्ड कायम किया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर से आए हुए हज़ारों सयाहों ने इस फेस्टिवल में बड़ी तादाद में शिरकत की। फेस्टिवल का मकसद उज़्बेकिस्तान के सियाहत के शोबे में सलाहियतों को बढ़ाना और इसके कौमी खान और सकाफती वरसे को आलमी सतह पर फ़रोग़ देना है। फेस्टिवल के दौरान ख्वारिज़म के लोक फनकार ग्रुप्स, बाख्शी, मकामी गुलकारों ने अपनी दिलकश लाइव परफॉर्मेंस से हाज़रीन को महसूस किया। इस मौके पर पाकिस्तानी और दीगर गैर मुल्की सयाहों ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि इस तरह के इवेंट्स मुल्क की सकाफत को फ़रोग़ देने के लिए इंतहाई अहम हैं। और नाज़रीन, दुनिया के दीगर ममालिक की तरह इटली में भी क्रिसमस की तैयारियां उरूज पर हैं। मसीही बरादरी अपने सबसे बड़े मजहबी त्यौहार को अकीदत और जोश व खरोश के साथ मनाने के लिए मुख्तलिफ तक़रीबात और प्रोग्राम्स तरतीब दे रही है। गिरजाघरों और इबादत गाहों में क्रिसमस ट्रीज, चिरागा और दीगर मजहबी अलामात से खूबसूरत सजावट कर दी गई है, जबकि गिरजाघरों, मार्केट्स और सड़कों को रंग बिरंगी रोशनियों और बरक़ी कुमकुमों से रोशन कर दिया गया है। क्रिसमस की आमद के बाद शहरी बड़ी तादाद में बाजारों का रुख कर रहे हैं, जहां खरीदारी का सिलसिला भी उरूज पर है। मसीही बरादरी के लिए क्रिसमस न सिर्फ एक खुशी का त्यौहार है, बल्कि ये उनके मजहबी अकीदे की एक अहम अलामत भी समझा जाता है। वफाकी वज़ीर ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ व तहक़ीक़ राना तनवीर हुसैन ने शेखुपुरा के इलाके वंडाला दयाल शाह में क्रिसमस की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान में बसने वाली अक़लियतें हमारे माथे का झूमर हैं और जिस तरह क़याम पाकिस्तान और बादशाह इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए मसीही बरादरी के रहनुमाओं ने अपना किरदार अदा किया, इस पर हम सबको फ़ख्र है। राना तनवीर हुसैन का कहना था कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की क़यादत में विफाक की सतह पर और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की क़यादत में सूबे की सतह पर जिस तरह अक़लियतों की खुशहाली के प्रोग्राम शुरू किए गए हैं, वो तमाम अक़लियतों के लिए बाइस फ़ख्र हैं। सेनेट, कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों में नुमाइंदगी, मुलाज़मतों में मखसूस कोटा और तरक्याती कामों में मसीही आबादी वाले इलाके, तरक्याती कामों का जाल, ये सब अक़लियतों से मोहब्बत का इजहार है। उनका कहना था कि भारत में जिस तरह मुसलमानों, ईसाइयों और दीगर अक़लियतों के साथ बदतरीन नारवा सलूक किया जा रहा है, वो काबिल मज़म्मत है। खुसूसन भारतीय सूबे के वज़ीर आला की जानिब से मुस्लिम बेटी के साथ शर्मनाक हरकत इंतहाई घटिया फेल है, जिसकी हम भरपूर मज़म्मत करते हैं। इस मौके पर राना तनवीर हुसैन ने अरकान सूबाई असम्बली पीर अशरफ रसूल, वसीम अंजुम संधू और मसीही मजहबी रहनुमाओं के हमरा मिलकर क्रिसमस का केक काटा और मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद दी। जबकि इस मौके पर रुकन पंजाब असम्बली वसीम अंजुम संधू ने मुल्क की तरक्की, सलामती और अमन अमान भाईचारे के लिए खुसूसी दुआ की। और दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी क्रिसमस तकरीबात का सिलसिला जारी है। शेखुपुरा में भी क्रिसमस के मौके पर वाइन चर्च ऑफ पाकिस्तान में क्रिसमस की मुनासबत से एक रंगारंग तकरीब सजाई गई है। तकरीब से खिताब करते हुए मुस्लिम लीग नून की अक़लियती रुकन पंजाब असम्बली वसीम अंजुम संधू, मसीही मजहबी रहनुमाओं पास्टर साइमन पीटर, पास्टर शमून चांद और पास्टर खुरम शहजाद का कहना था कि पाकिस्तान में जो मजहबी आज़ादी अक़लियतों को हासिल है, वो शायद ही दुनिया के किसी और मुल्क में मैसर हो। पाकिस्तान मसीही बरादरी समेत तमाम अक़लियतों के लिए जन्नत से कम नहीं है। मुकर्रिरीन ने भारतीय सूबे के वज़ीर आला की जानिब से मुस्लिम बेटी के हिजाब की बेहरमती के वाक़े की पुरज़ोर अल्फाज में मज़म्मत की। इस मौके पर मसीही बच्चों ने क्रिसमस की मुनासबत से खूबसूरत टैबलोस पेश किए। शुरका ने मिलकर क्रिसमस का केक काटा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर बहावलपुर में क्रिसमस की तकरीब का इनेकाद किया गया। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर सैयद हसन रज़ा ने इब्न मरियम चर्च इस्लामी कॉलोनी में मसीही बरादरी के साथ क्रिसमस केक काटा। मुल्क की तरक्की और सलामती के लिए खुसूसी दुआ मांगी गई। क्रिसमस तकरीब से खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर सैयद हसन रज़ा ने कहा कि पाकिस्तान में अक़लियतों को मुकम्मल मजहबी आज़ादी हासिल है। मुल्क की तरक्की में मसीही बरादरी की ग्रां कदर खिदमात हैं।
انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر کرسمس کے موقع پر مسیحی ملازمین کو تنخواہیں بروقت ادا کر دی گئی ہیں۔ کرسمس تقریبات میں شریک مسیحی برادری نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور ڈپٹی کمشنر بہاولپور سید حسن رضا کا شکریہ ادا کیا۔ چنیوٹ میں بھی ملک بھر کی طرح چناب نگر میں کرسمس کی تیاریاں عروج پر ہیں۔ ضلع انتظامیہ کی طرف چناب نگر میں مسیحی برادری کی سہولت کے لیے سستا کرسمس بازار قائم کر دیا گیا ہے۔ سستے بازار میں پھل اور سبزیاں، آٹا، چینی سمیت بنیادی ضروریات کی تمام اشیاء عام مارکیٹ سے رعایتی نرخوں پر دستیاب ہیں۔ سستا کرسمس بازار قائم کرنے کا مقصد مسیحی برادری کو کرسمس کے موقع پر ریلیف فراہم کرنا ہے۔ ڈپٹی کمشنر عائشہ رضوان کا کہنا ہے کہ کرسمس بازار 24 دسمبر کی شام تک فعال رہے گا۔ مسیحی برادری کی بڑی تعداد اور اس رعایتی بازار سے ضرورت زندگی کی تمام اشیاء خرید رہی ہے۔ مسیحی برادری نے سستا کرسمس بازار لگانے پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا شکریہ ادا کیا۔ ناظرین ویدر اپڈیٹ میں خوش آمدید۔ ناظرین ملکہ کوہسار مری میں طویل خشک سالی کے بعد موسم سرما کی پہلی بارش سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے۔ بارش کا یہ سلسلہ مری شہر، بوربھن اور نیو مری کے مضافاتی علاقوں میں جاری ہے۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی پر سیاح بھی برف باری کا نظارہ کرنے کے لیے مری پہنچ گئے ہیں۔ مری میں ممکنہ برف باری کے حوالے سے ضلعی انتظامیہ متحرک ہے۔ ڈی سی مری آغا ظہیر عباس شیرازی نے مال روڈ کنٹرول روم اور THQ کا دورہ کیا۔ انہوں نے جھیکا گلی، کل ڈنہ اور دیگر مقامات پر قائم فیسیلیٹیشن سینٹرز کا بھی دورہ کیا اور انتظامات کا جائزہ لیا۔ ریسکیو 1122 ہائی وے، RWMC ٹورزم سکواڈ سمیت تمام محکموں کے افسران اور اہلکاروں کو فیلڈ میں رہنے کی ہدایت کی۔ 13 مقامات پر فیسیلیٹیشن سینٹرز قائم کر دیے گئے ہیں۔ کنٹرول روم فعال ہے اور ممکنہ برف باری کے پیش نظر عملہ مشینری کے ہمراہ فیلڈ میں موجود ہے۔ اور طویل خشک سالی کے بعد مانسیرا کے میدانی اور بالائی علاقوں میں بارش کا سلسلہ رات گئے سے وقفے سے جاری ہے۔ وادی کاغان، وادی سرن کے پہاڑوں پر برف باری سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے۔ سیاحتی مقام ناران اور سری پائے میں برف باری کا سلسلہ وقفے سے جاری ہے۔ ناران کے بیشتر علاقوں میں اب تک 1 سے 2 انچ تک برف پڑ چکی ہے۔ کاغان ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے بارش اور برف باری کے دوران شاہراہ کاغان پر مختلف مقامات پر سیاحوں اور مقامی لوگوں کی رہنمائی اور مدد کے لیے مشینری کے ساتھ سٹاف کو تعینات کیا ہے۔ وادی میں آنے والے سیاحوں اور مقامی لوگوں سے کہا گیا ہے کہ وہ سفر کے دوران احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ اور آزاد کشمیر کے بیشتر علاقوں میں بارش اور بالائی علاقوں میں بارش کے بعد موسم سرد مگر خوشگوار ہو گیا۔ طویل خشک موسم کے بعد آزاد کشمیر کے بیشتر علاقوں میں بارش کا سلسلہ گزشتہ رات شروع ہوا جو وقفے سے جاری رہا۔ نیلم اور وادی جہلم کے بالائی علاقوں میں برف باری بھی ہوئی جس کی وجہ سے ان علاقوں میں سردی کی شدت میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ بارش کے بعد شہریوں کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے۔ اور اب رخ کریں گے شہر قائد کراچی کا، جہاں مختلف علاقوں میں صبح کے اوقات میں دھند چھائی رہی اور حد نگاہ شدید متاثر ہوئی جس کے بعد کئی بین الاقوامی پروازیں دیگر ایئرپورٹس منتقل کر دی گئیں۔ کراچی میں صبح کے وقت گلشن معمار، سرجانی ٹاؤن، سپر ہائی وے، سوراب گوٹ، گلستان جوہر، گلبرگ، آئی چندریگا روڈ، کلفٹن، ڈیفنس کے اطراف میں دھند کا راج رہا۔ پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی کے مطابق دھند کے باعث کراچی آنے والی 5 بین الاقوامی پروازیں دیگر ایئرپورٹس منتقل کر دی گئیں۔ PAA کے مطابق محدود حد نگاہ میں پروازوں کی منتقلی معمول کا حفاظتی اقدام ہے۔ پیگاسز، اتحاد، فلائی ڈیل اور گلف ایئر کی پروازیں کراچی کے بجائے مسقط، جبکہ فلائی جناح کی پرواز جدہ سے کراچی کے بجائے اسلام آباد منتقل کی گئی۔ پاک پتن اور گرد و نواح میں شدید دھند کے باعث سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ دھند کی کیا صورتحال ہے جانتے اپنے نمائندے عباس علی عارفی سے۔ عباس، آگاہ کیجئے گا۔ ملک بھر کی طرح ضلع پاک پتن کے مضافاتی علاقے بھی اس وقت شدید دھند کی لپیٹ میں ہیں۔ سردی کی شدت میں اضافے کے باعث شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔
धुंध के बाइस सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर हो रही है। मुख्तलिफ मकामात पर गाड़ियों की रफ्तार सुस्त रवि का शिकार है। मैं आपको बताता चलूं कि पेट्रोलिंग पुलिस की जानिब से शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत जारी की जा रही हैं। शहरियों को फोग लाइट्स के इस्तेमाल की अपील करने के साथ साथ गाड़ियों पर रिफ्लेक्टर स्टिकर भी लगाए जा रहे हैं। अगर बात की जाए एयर क्वालिटी इंडेक्स की तो आज पाकपतन का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 197 रिकॉर्ड किया गया है, जिसके बाइस फिजा काफ़ी आलूदा है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक आलूदा फिजा में एहतियाती तदाबीर ना अपनाने से शहरी आँखों, गले और सांस के अमराज में मुब्तला हो सकते हैं। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से शहरियों से अपील की जा रही है कि वो सफ़र के दौरान फोग लाइट्स का इस्तेमाल करें और हुकूमती SOPs पर अमल दरामद करें। जी। और पसरूर में आज तीसरे रोज भी धुंध की शिद्दत बरकरार है। धुंध के बायस कारोबारी सरगर्मियां भी मुतासर हो चुकी हैं। धुंध में इजाफे के बायस ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से अलर्ट जारी किया गया है। मजीद जानते हैं पसरूर से हमारे नुमाइंदे राना कैसर हयात से। जी राना कैसर हयात, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पसरूर, चिविंडा, बडियाना, किंगरा और दीगर मज़ाफ़ाती इलाके गुज़श्ता 2 दिनों से गहरी धुंध की लपेट में हैं। धुंध की शिद्दत में इजाफे के बायस सर्दी की शिद्दत में भी नुमाया इजाफा देखा जा रहा है, जबकि हद निगाह इंतहाई कम होने से ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासर हो चुकी है। ड्राइवर्स की जानिब से गाड़ियों की हेडलाइट्स ऑन करते हुए इंतहाई सुस्त रवि से सफ़र इख्तियार किया जा रहा है और ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ड्राइवर्स को एहतियात बरतने और फासला बरकरार रखने की हदायत जारी की गई है। दूसरी तरफ पसरूर के कारोबारी मराकज़ में धुंध के बायस मामूलात ज़िंदगी भी मुतासर दिखाई दे रहे हैं। शहरियों की आमदोरफ्त में कमी के बायस बाजार और सड़कें सुनसान नज़र आ रही हैं, जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक मुसलसल धुंध के बायस फ़ज़ा में नमी का तनासब बढ़ चुका है और सर्दी की शिद्दत में भी मज़ीद बढ़ने का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। जी, बहुत शुक्रिया राना कैसर हयात, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और शिमाल मगरबी बलोचिस्तान और खित्ता पठवार में तेज़ हवाओं के साथ वक्फे वक्फे से बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम सर्द और मतला जुज़वी अब्र आलूद रहेगा। मशरक़ी पंजाब और बालाई सिंध के अजला में धुंध और स्मोक छाए रहने की तवक्को है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और मतला जुज़वी अब्र आलूद रहा। पंजाब और बालाई सिंध के बाज़ अजला में धुंध और स्मोक, जबकि पंजाब के शिमाल मशरक़ी अजला में शदीद धुंध छाई रही। तहम बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, बालाई वस्ती पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर बारिश रिकॉर्ड की गई। आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत लह गोपिस -2, कालाम और स्कर्दू में 0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और नाजरीन, अब आपको आगाह करते हैं कि आज दुनिया के आलूदा तरीन बड़े शहरों का AQI क्या रहा। पहले नंबर पर दिल्ली मौजूद है, जहां AQI 285 रिकॉर्ड किया गया। कराची में 278, जबकि तीसरे नंबर पर रहा लाहौर, जहां AQI 247 रिकॉर्ड किया गया। कायरा में 246, ढाका में 240, जबकि कोलकाता में AQI 174 रिकॉर्ड किया गया। पाक बहरिया के दूसरे मिलिट्री क्लास जहाज PNS खैबर की कमिश्निंग की तकरीब का इस्तांबुल में इनेकाद। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की बतौर मेहमान खुसूसी तकरीब में शिरकत। तकरीब का इनेकाद तुर्की के इस्तांबुल नेवल शिपयार्ड में किया गया। ISPR के मुताबिक नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ निशान इम्तियाज भी तकरीब में मौजूद थे। रजब तैयब एर्दोगान ने पाकिस्तान और तुर्की के माबैन बरादराना ताल्लुकात को मिसाली करार दिया। तुर्की के सदर का दिफाई पैदावार के शोबे में बाहमी ताउन को फरोग देने पर भी जोर। खबर दे रहे हैं आपको, पाक बहरिया के दूसरे मिलिट्री क्लास जहाज PNS खैबर की कमिश्निंग की तकरीब का इस्तांबुल में इनेकाद किया गया। पाक बहरिया के दूसरे मिलिट्री क्लास जहाज PNS खैबर की कमिश्निंग की तकरीब इस्तांबुल में मुनाकिद हुई। ISPR ने इस हवाले से आगाह किया है। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान की बतौर मेहमान खुसूसी तकरीब में शिरकत। तकरीब का इनेकाद तुर्की के इस्तांबुल नेवल शिपयार्ड में किया गया।
نیول چیف ایڈمرل نویر اشرف نشان امتیاز نے بھی تقریب میں شرکت کی۔ رجب طیب ایردوان نے پاکستان اور ترکی کے درمیان برادرانہ تعلقات کو مثالی قرار دیا۔ ترکی کے صدر کا دفاعی پیداوار کے شعبے میں باہمی تعاون کو فروغ دینے پر بھی زور۔ چیف آف دی نیول اسٹاف ایڈمرل نویر اشرف نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاک ترک بحری افواج کے روابط دفاعی اشتراک کار کو مربوط اور مضبوط بنانے کا باعث ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاک ترک بحری افواج کا تعاون گہری شراکت داری کا مظہر ہے۔ کمشننگ کے بعد ترک صدر کا پی این ایس خیبر کا دورہ، صدر رجب طیب ایردوان کو پی این ایس خیبر پر گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا۔ آگے بڑھیں گے، آپ کو بتائیں کہ رحیم یار خان میں ٹریفک آگاہی مہم کے تحت ٹریفک پولیس نے ریلی نکالی، گاڑیوں کی چیکنگ کی اور ڈرائیوروں کو ہدایات جاری کی۔ ٹریکٹر ٹرالیوں اور رکشوں پر ریفلیکٹرز لگائے گئے، جبکہ قوانین کی خلاف ورزیوں پر جرمانے بھی عائد کیے گئے۔ مزید تفصیل بتائیں گے اشفاق احمد۔ رحیم یارخان میں ٹریفک قوانین کے بارے میں عوامی شعور اجاگر کرنے کے لیے ٹریفک پولیس کی جانب سے ریلی کا انعقاد ہوا۔ مہم کے دوران ڈرائیونگ لائسنس چیک کیے گئے، ٹریکٹر، ٹریلیوں، رکشوں اور دیگر سواریوں پر ریفلیکٹر اور حفاظتی سٹیکرز بھی لگائے گئے تاکہ دھند کے موسم میں یہ گاڑیاں دور سے آسانی سے دکھائی دے سکیں۔ رات کے وقت دھند شدید ہو جاتی ہے اور اکثر گاڑیوں میں جیسے آپ نے دیکھا ٹریکٹر ٹرالیاں یا رکشے وغیرہ ان میں لائٹیں نصب نہیں ہیں، تو ہماری میکسیمم کوشش ہے کہ ہم لوگوں کو اس بارے میں اویئرنیس بھی دے رہے ہیں اور ان کے گاڑیوں کے پیچھے ریفلیکٹر بھی لگا رہے ہیں تاکہ حادثات سے بچا جا سکے۔ ٹریفک پولیس کی طرف سے شہریوں کے لیے جو آگاہی مہم ٹریفک قوانین کی چلائی گئی ہے، یہ شہریوں کے لیے ہی فائدہ مند ہے۔ ٹریفک پولیس کی جانب سے قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کارروائی بھی کی جا رہی ہے، جس کے تحت بغیر لائسنس، بغیر ہیلمٹ اور بغیر نمبر پلیٹ گاڑی چلانے والوں پر جرمانے عائد کیے جا رہے ہیں۔ ٹریفک پولیس کا مقصد جرمانہ کرنا نہیں بلکہ عوام میں ٹریفک قوانین کی اہمیت کا شعور بیدار کرنا ہے تاکہ شہری ڈرائیونگ لائسنس بنوائیں، ہیلمٹ کا استعمال کریں، نمبر پلیٹ لگائیں اور ٹریفک قوانین کی پابندی کریں۔ اشفاق احمد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، رحیم یار خان۔ کیڈٹ کالج گھوٹکی میں 7واں سالانہ یوم والدین منایا گیا اور پاسنگ آؤٹ پریڈ کا شاندار انعقاد کیا گیا۔ شفقت قاضی کی رپورٹ دیکھیے۔ کیڈٹ کالج گھوٹکی میں 7واں سالانہ پیرنٹس ڈے اور پاسنگ آؤٹ پریڈ کی پروقار تقریب کالج کیمپس میں منعقد ہوئی، جس میں والدین، معززین مہمانوں، سول و عسکری حکام اور اساتذہ نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ تقریب کے مہمان خاص سابق صوبائی وزیر عبدالباری خان پتافی تھے۔ کیڈٹ کالج کو بنے ہوئے کوئی زیادہ ٹائم نہیں ہوا اور پہلے پاکستان میں جتنے کیڈٹ کالجز موجود ہیں وہ بڑے ٹائم سے بنے ہوئے ہیں اور بڑے آرگنائزڈ ہیں۔ تقریب میں ڈپٹی کمشنر گھوٹکی منظور احمد کنرانی، بریگیڈیئر جمیل، کمانڈر اٹلی 16 ڈویژن کنٹونمنٹ پنواکل اور ریجنل کوآرڈینیٹر قمر زمان شاہ بھی معزز مہمانوں کی حیثیت سے شریک تھے۔ مہمان خاص کو پریڈ گراؤنڈ میں جنرل سلامی پیش کی گئی۔ یہاں پر نہ صرف پڑھائی، اس کے ساتھ ساتھ ڈسپلن، کو کریکولر ایکٹیویٹیز اور کافی کچھ سکھایا جاتا ہے بچوں کو۔ تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا۔ پرنسپل نے استقبالیہ خطاب کیا، چیمپئنز فلیگ کی حوالگی، انعامات کی تقسیم اور مہمان خاص کو شیلڈ پیش کی گئی۔ میرا بیٹا ابو بکر اسی سال پاس آؤٹ ہو کر سیکنڈ لیفٹیننٹ پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول جوائننگ کیا ہے۔ پاسنگ آؤٹ پریڈ کے بعد کیڈٹس نے مارچ پاسٹ، پی ٹی شو، جمناسٹک اور ثقافتی پروگرام پیش کیے، جنہیں حاضرین نے بھرپور داد دی۔ کیڈٹ کالج کا جو ایٹماسفیئر ہے، یہاں کی جو ایجوکیشن ہے، بہت کمال کی ہے۔ تقریب کے اختتام پر مہمان خاص نے سائنس نمائش اور آر او پلانٹ کا افتتاح کیا۔ فیتھ ٹرمپ منسٹریز انٹرنیشنل کے زیر اہتمام ننکانہ صاحب میں کرسمس کیک کاٹنے کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ رپورٹ کریں گے جاوید احمد معافیہ۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پنجاب میں اقلیتی امور کے صوبائی وزیر سردار رمیش سنگھ اروڑا نے کہا کہ پاکستان میں تمام اقلیتوں کو مکمل مذہبی آزادی حاصل ہے اور پنجاب حکومت اقلیتی آبادی کی فلاح و بہبود کے لیے عملی اقدامات کر رہی ہے۔ پنجاب میں اقلیتی آبادی کے 1 لاکھ سے زیادہ مستحق خاندانوں کو مناٹی کارڈز فراہم کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب حکومت کی جانب سے کرسمس کی تقریبات کو سرکاری سطح پر منایا جا رہا ہے۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ کہتی ہے اقلیت میرے سر کا تاج ہے۔ سارے مسیحی بہن بھائی اپنی ریلی لے کے نکلی، سب نے اس کو ویلکم کیا، مسلمان بھی تھے، سکھ بھی تھے، ہندو بھی تھے، دیگر اقلیتیں بھی تھی، سب نے اس کو ویلکم کیا۔ تقریب سے سکھ، ہندو اور مسیحی رہنماؤں نے بھی خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اقلیتوں کے لیے کسی جنت سے کم نہیں ہے، جہاں تمام مذہب کے پیروکار ایک دوسرے کی خوشیوں میں بھرپور شرکت کر کے
बैनुल मज़हब हमदर्दी का मुजाहरा करते हैं। बिहार के चीफ मिनिस्टर का फेल है, शर्मनाक है। देखिए यही फर्क है हिंदुस्तान और पाकिस्तान का, इसीलिए हम तमाम अकलीतें नारे बुलंद करते हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद। क्रिसमस के लिए इंतजामात किए गए हैं वो बहुत ज़बरदस्त है। हम पंजाब की गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करते हैं। भारत में जो एक बेटी के मुंह से निकाब उतारने की कोशिश किया वो इंतहाई शर्मनाक बात है। सरदार रमेश सिंह अरोड़ा ने क्रिसमस का केक काटा, अकलीती बिरादरी में इमदादी चेक तकसीम किए और मुख्तलिफ शोबों में नुमाया खिदमात सर अंजाम देने वाली शख्सियात में क्रिसमस अवार्ड भी तकसीम किए। जावेद अमन मुआविया, PTV न्यूज, ननकाना साहिब। नाज़रीन, खेल में खुशामदीद। अंडर 19 एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान की भारत के खिलाफ बैटिंग जारी है। मैच PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया जा रहा है। दुबई में खेले जा रहे मैच में भारत की अंडर 19 टीम ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। पाकिस्तान अंडर 19 टीम की जानिब से हमजा जहूर और समीर मिन्हास ने इनिंग्स का आगाज किया तो हमजा जहूर 18 रन बनाकर आउट हुए। उस्मान खान ने 35 रन स्कोर किए। समीर मिन्हास ने सेंचुरी स्कोर की। सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने बांग्लादेश, भारत ने श्रीलंका को हराया। Oh, that is tremendous, but has he got the distance on it? Got the height, and it's एडलेड टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 82 रन से शिकस्त देकर एशेज सीरीज अपने नाम कर ली। ऑस्ट्रेलिया के 435 रन के हदफ के ताक़ब में इंग्लिश टीम 352 रन बनाकर आउट हुई। खेल के आखिरी रोज इंग्लैंड ने अपनी दूसरी इनिंग्स कल के स्कोर 207 रन 6 खिलाड़ी आउट से दोबारा शुरू की तो बाकी के 4 खिलाड़ी स्कोर में 145 रन का इजाफा करके चलते बने। जेमी स्मिथ ने 60 और विल जैक्स ने 47 रन बनाए। ब्रायडन कार्स 39 रन के साथ नॉट आउट बैठे रहे। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस और नेथन लियोन ने 3-3 खिलाड़ियों को आउट किया। ऑस्ट्रेलिया ने पहली इनिंग्स में 371 और दूसरी इनिंग्स में 349 रन स्कोर किए थे। इंग्लैंड पहली इनिंग्स में 286 रन बना सकी थी। 5 मैचेस की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को 3-0 की फैसलाकुन बरतरी हासिल हो चुकी है। सीरीज का चौथा टेस्ट मैच 26 दिसंबर से मेलबर्न में खेला जाएगा। एशेज सीरीज PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाई जा रही है। मराकश के इलियासिफ अब्दुल मजीद और कीनिया की मेयोनी मोतोको ने सखर में होने वाली तारीखी बैनुल-अक़वामी लोक सहायता मैराथन अपने नाम कर ली। उम्मीद की दौड़ थीम के तहत मर्दों के लिए फुल मैराथन 42.195 किलोमीटर जबकि खवातीन की दौड़ 10 किलोमीटर पर मुहित थी। मैराथन में 15 ममालिक के 28 से ज़ायद बैनुल-अक़वामी एथलीट्स और मुल्क भर से 3000 से ज़ायद रनर्स ने हिस्सा लिया। मर्दों में मराकश के इलियासिफ अब्दुल मजीद ने 2 घंटे 22 मिनट 35 सेकंड में फासिला तय करके पहली पोजीशन हासिल की। दूसरी पोजीशन इथियोपिया जबकि तीसरी पोजीशन कीनिया के एथलीट के नाम रही। खवातीन की 10 किलोमीटर रेस में कीनिया की मेयोनी मोतोको पहले नंबर पर रही। जापान की योको एरिगोची दूसरे और लाहौर की महानूर अफजल का तीसरा नंबर रहा। बीकन हाउस लाहौर ने गनी स्कूल टूर्नामेंट का टाइटल अपने नाम कर लिया है। गजाफी स्टेडियम लाहौर में खेले गए फाइनल में बीकन हाउस स्कूल ने एचिसन कॉलेज को हराया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने फाइनल मैच देखा। उन्होंने फातेह टीम के खिलाड़ियों को फाइनल जीतने पर मुबारकबाद देते हुए ट्रॉफी दी। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और सूबाई वजीर खेल फैसल अयूब खोकर ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। मोहसिन नकवी ने इस मौके पर कहा कि स्कूल लेवल पर क्रिकेट को फरोग दिया जा रहा है। गनी इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिकेट ने स्कूल क्रिकेट के फरोग के लिए PCB से भरपूर ताउन किया है। चेयरमैन PCB ने बीकन हाउस के लिए क्रिकेट डेवलपमेंट के लिए 50 लाख रुपए का ऐलान किया जबकि एचिसन कॉलेज को 25 लाख रुपए दिए जाएंगे। और माउंट मैंगनोई टेस्ट में वेस्ट इंडीज को जीतने के लिए मजीद 419 रन दरकार हैं जबकि उनकी तमाम 10 विकेटें अभी बाकी हैं। खेल के चौथे रोज वेस्ट इंडीज ने 462 रन के हदफ के ताक़ब में बगैर किसी नुकसान के 43 रन स्कोर कर लिए। न्यूजीलैंड ने अपनी दूसरी इनिंग्स 306 रन 2 खिलाड़ी आउट पर डिक्लेयर कर दी। पहली इनिंग्स में डबल सेंचुरी बनाने वाले डेवन कॉनवे ने दूसरी इनिंग्स में भी सेंचुरी बनाई। वो 100 रन बनाकर पेविलियन लौटे। टॉम लैथम ने भी 101 रन की इनिंग्स खेली।
केन विलियमसन 40 और रचिन रविंद्रा 46 रन के साथ नॉट आउट रहे। न्यूजीलैंड ने पहली इनिंग्स 575 रन 8 खिलाड़ी आउट पर डिक्लेयर कर दी थी। वेस्ट इंडीज की टीम पहली इनिंग्स 420 रन बनाकर आउट हुई। 3 मैचेस की सीरीज में न्यूजीलैंड को 1-0 की बर्तरी हासिल है। बिग बैश क्रिकेट लीग के 7वें मैच में सिडनी सिक्सर्स ने सिडनी थंडर को 47 रन से हराया। मैच पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया गया। सिडनी में खेले गए मैच में सिक्सर्स ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पर 198 रन स्कोर किए। जॉर्ज फिलिप ने 57 गेंदों पर 96 रन की इनिंग्स खेली, जिसमें 4 छक्के और 6 चौके शामिल थे। बाबर आजम ने 58 रन स्कोर किए। उनकी इनिंग्स 2 छक्कों और 5 चौकों पर मुश्तमिल थी। डैनियल ह्यूज 25 रन बना सके। थंडर की जानिब से रीस टॉपली ने 3 खिलाड़ियों को चलता किया। 199 रन के हदफ के ताक़ब में सिडनी थंडर की टीम आखिरी ओवर में 151 रन बनाकर आउट हो गई। सैम बलिंग्स 51 रन के साथ टॉप स्कोरर बैठे रहे। शादाब खान ने 41 रन स्कोर किए। सिडनी सिक्सर्स की जानिब से जैक एडवर्ड्स ने 5 विकेटें हासिल की। Catch that, Cody. Should be out. It is. Well, catch that. Oh, hang on, and another one for the skipper. बिग बैश लीग के 8वें मैच में मेलबर्न रेनिगेड्स और हॉबार्ट हरिकेन्स की टीमें मध्य मुकाबिल होंगी। जलांग में शेड्यूल मैच दिन 1:15 पर शुरू होगा और पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया जाएगा। पॉइंट्स टेबल पर मेलबर्न रेनिगेड्स की टीम दूसरे नंबर पर है। हॉबार्ट हरिकेन्स की टीम 7वें नंबर पर है। मेलबर्न स्टार्स की टॉप पोजीशन है। IL T20 में आज भी 2 मैचेस खेले जा रहे हैं। 23वें मैच में दुबई कैपिटल्स और गल्फ जायंट्स की टीमें अबू धाबी में मध्य मुकाबिल होंगी। मुकाबला दिन 3 बजे से पीटीवी नेशनल पर बराह रास्त दिखाया जाएगा। इवेंट का 24वां मैच शाम 7:30 बजे से डेजर्ट वाइपर्स और MI एमिरेट्स के दरमियान दुबई में खेला जाएगा। मैच पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया जाएगा। और अब बात कर लेते हैं फुटबॉल की। तो इंग्लिश प्रीमियर लीग में आर्सेनल ने एवर्टन को हरा दिया। लिवरपूल में खेले गए मैच में आर्सेनल ने 1 गोल से कामयाबी समेटी। एवर्टन की टीम कोई गोल न कर सकी। मैच का वाहिद और फैसलाकुन गोल विक्टर ने खेल के 27वें मिनट में किया। पॉइंट्स टेबल पर आर्सेनल की टीम 39 पॉइंट्स के साथ सरे फहरिस्त है। मैनचेस्टर सिटी 37 पॉइंट्स के साथ दूसरे और एस्टन विला 33 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पर है। स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा में रियल मैड्रिड ने सेविया को मात दी। मैड्रिड में खेले गए मैच में मेजबान रियल मैड्रिड ने 2-0 से कामयाबी समेटी। खेल के 38वें मिनट में जूड बेलिंगम ने गोल करके अपनी टीम को बढ़तरी दिलाई। 86वें मिनट में किलियन एम्बापे ने दूसरा गोल करके रियल मैड्रिड को फतह से हमकिनार किया। स्टैंडिंग्स में रियल मैड्रिड 42 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर है। बार्सिलोना 43 पॉइंट्स के साथ सरे फहरिस्त है। और इतालवी फुटबॉल लीग सीरी ए में यूवेंटस ने रोमा को 1 के मुकाबले में 2 गोल से हरा दिया। ट्यूरिन में खेले गए मैच के 44वें मिनट में फ्रांसिस्को ने गोल करके यूवेंटस को बढ़तरी दिलाई। 70वें मिनट में लुइस ओपेंडा ने बढ़तरी दुगनी कर दी। रोमा की जानिब से वाहिद गोल टोमासो बल्दांजी ने खेल के 75वें मिनट में किया। पॉइंट्स टेबल पर रोमा चौथे, यूवेंटस 5वें नंबर पर है। इंटर की टीम टॉप पोजीशन पर बराजमान है। और खेल से फिल वक्त इतना ही। अब आपको लिए चलते हैं रिजवान और हुमा की जानिब। शुक्रिया समी। नाज़रीन, इसी के साथ ही खबरनामा पहुंचे अपने इख्तिताम को। हमें दीजिए इजाज़त। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए PTV न्यूज़। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।